جب گرتا ہے نا تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے. لیکن ایسے جھوٹ بولنے والے کیا ضرورتاً مصلحتاً یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر تو ابھی صرف 24 سال ہی ہے، یا لڑکا ہمارا جو ہے وہ تو 60,000 روپیہ مہینے کی کماتا ہے؟ نہیں، بالکل اسلام میں اس کی کوئی جواز کی صورت مالی موجود حیثیت نہیں ہے. کے بارے میں کوئی جواز کی صورت موجود نہیں. بالکل آپ نے ہاں کسی سے اگر کوئی غلطی سے اگر ہو گیا، جس سے مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں خواتین کسی واقعے کسی چاند سے عمرے جو ہے وہ منتخب کرتی تھی، گنتی تھی کہ فلاں چاند میں میری بیٹی بھی، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کی صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کسی کا حق تلف کرنا ہے، لہذا ایسی صورت میں اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کسی ایک چیز پر، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کسی ایک چیز سے مجھے روک دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس چیز پر بیعت کر لو. وہ مسلمان ہو گیا. وہ شرابی تھا، شراب پینے گیا، اسے خیال آ گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا شراب پی ہے تو اب میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا. ان کی ایک اینٹیٹی تھی، وہ لوگ جھوٹ جب وعدہ کر لیتے تو پورا کرتے تھے. لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے پی لی اور میں نے کہا کہ ہاں پیے، مجھ پر حد جاری ہوگی، کوڑے لگا دیے جائیں گے. شراب سے دور ہو گیا. زنا کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ اگر پوچھا گیا تو میں کہوں گا کہ جناب ہاں میں نے جرم کیا، تو پھر مجھے اسٹون کر دیا جائے گا، اسٹوننگ ہوگی، سنسار کر دیا جائے گا. لہٰذا پھر وہ رک گیا. تو ایک جھوٹ کے روکنے کی وجہ سے حکمت عالم دیکھیے، حکمت رسول دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلم کتاب بھی بنایا، حکیم بھی بنایا. آپ کی دانائی، فہم و فراست یہ تھی، ایک چیز سے روکا، اور سچائی کی ایسی طاقت آ گئی کہ وہ شخص جو ہے کلیتاً سارے گناہوں سے دور ہو گیا. اور سچائی میں طاقت ہوتی ہے. ایک بات میں اور کر لوں، دیکھیے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ بچے ہیں، یہ ماں کی جو تربیت ہوتی نا گود میں، جی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا فلاں کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہ کرو تو وہ بات نہیں سنے گا، وہ کرے گا جو آپ کرو گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو خود کو پہلے اس سچائی کے قالب میں ڈھالو. حضور غوث العظم کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. چھپا کر پیسے رکھ دیے 40 درہم، اور سب چور نے لوٹ لیا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے، یہاں صدری میں چھپائے. نتیجہ کیا نکلا؟ سچائی کی طاقت سے وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے. بالکل صحیح. سو یہاں پہ چونکہ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، سو ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सो खुशाब में मेरी सुई वहीं अटकी हुई है, मैं जानना चाह रही हूँ कि छोटे मोटे झूठ फिर बोल सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, अब झूठ तो झूठ होता है। देखिए, जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, सही, उसका अल्टीमेट जो है वो एंड रिजल्ट तो ये निकलेगा कि इंसानी जिस्म को और सेहत को तबाह कर देगा। झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कुछ सूरतों में, जिस तरह मैंने कहा कि दो मुसलमान भाइयों में सुलह करवाना हो, ठीक है, या कोई वॉर स्ट्रेटेजी हो, ठीक है ना, कि जिसमें आप किसी को कीमोफ्लाज करना चाह रहे हैं अपने मुखालिफ को, तो ऐसी सूरत में जवाज की सूरतें बनती है। अदरवाइज मुआशरती तौर पर एक घर, एक इंडिविजुअल, एक मुआशरा, एक सोसाइटी, एक कौम, एक मिल्लत, वो झूठ सख्त मना है। बल्कि झूठ अगर हो जाए तो फिर मिल्लत नहीं रहती, कौम नहीं रहती, वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। उसकी क्रेडिबिलिटी, आप ये देखें ना कि जो आदमी झूठ बोलता है, कुरान में वला तुती कुल्ल हल्लाफिन महीन, उस झूठ बोलने वाले, कसम खाकर झूठ बोलने वाले रजील की बात ना सुनो। अच्छा, जी हाँ, तो इस कुरान ने तो बल्कि बाकायदा रजील कहकर। अच्छा, तो अगर कोई कसम खा लेता है, फर्ज किया अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, या किसी के सामने कोई बंदा कसम खा लेता है, तो बाद में क्या सिर्फ कफारा दे के उस कसम की तलाफी की जा सकती है, या उस कसम को तोड़ा जा सकता है? या अगर उसने कुरान की कसम खा ली, अल्लाह की कसम खा ली, और किसी ऐसे एग्रीमेंट पे जिसमें कि उन दोनों का मामला उस पे तय हो गया, उस कसम की बुनियाद पे कि आपने मेरे साथ एक कसम खाई कि ये चीज ऐसे होगी, और मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, कुरान की कसम खाता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, और बाद में आपने उससे मुकर गए और आपने उस कसम को तोड़ दिया, तो क्या ये बहुत आसान है कि आप उसका कफारा दे दें? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई गलत वादा किया वो हम में से नहीं। अच्छा, ठीक है ना, तो उसको इस्लाम से आपने एक तरीके से बाहर निकाल दिया। लिहाजा अगर कोई शख्स एग्रीमेंट करता है, इफ़ाए अहद की तो बाकायदा कुरान और अहादीस में इतनी तंबी और इतनी ताकीदात आई हैं, लिहाजा एक मुसलमान की तो सारी इमारत ही एग्रीमेंट पर चलती है। अगर कोई गलत एग्रीमेंट करता है तो उसके दो नतीजे, एक तो ये कि वो शुरू ही से किसी को धोखा देना चाहता है जी, और कसम खाकर, झूठी कसम खाकर उसको इत्मीनान दिलाना चाहता है। एक तो ये सूरत है, और दूसरी ऐसी सूरत में तो जवाज नहीं है। दूसरी सूरत ये कि जब वो एग्रीमेंट कर रहा था तो उस वक्त वो कसम खाकर दरअसल अपने कल्बी कैफियत को बयान कर रहा था, अपने आज़म का इरादा कर रहा था। ऐसी सूरत में अगर बाद में किसी वजह से वो कसम पर पूरा नहीं उतरा तो फिर कसम का कफारा जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा, कॉलर ड्रॉप हो चुके हैं। डॉक्टर बिल्किस जी, क्या आज किस बारे में आप हमें बता रही हैं? अनार की? जी, मैं अनार के बारे में बता रही हूँ। जी, अनार का क्या बताने जा रही हैं? अनार के हर अंग के बारे में बताऊंगी मैं। एक देखें, यहाँ पौधा रखा हुआ है अनार का। अरे वाह! इसमें इसके फूल भी आए हुए हैं, थोड़े छोटे से फल भी लगे हुए हैं, और इसके पत्ते भी हैं। ये चाइना का अनार है जो इतने जी छोटे, इसमें कोई नहीं, ये 2 साल पुराना है, मेरे पास 2 साल से है। सही, लेकिन इतना का इतना ही है। ठीक है। और इस पे आते हैं चाइना का, ये जब भी इससे बड़ा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका फल। ठीक है। अच्छा, अब इसके हम पत्तों से शुरू करते हैं। इसके पत्तों का कहवा बनाकर अगर पिया जाए तो नज़ला, जुकाम, खांसी, यानी कि आपके एलर्जी की वजह से एस्थमा, नज़ला, जुकाम, खांसी अगर आपको होती है तो इसके चंद पत्ते आप तोड़ लें, ठीक है, और 1.5 कप पानी में पहले से इसमें दालचीनी और लौंग डाला होता है, उसके पत्ते भी दिए जा सकते हैं। चंद पत्ते 6 से 7 पत्ते, 1.5 कप पानी, 2 छोटी जैसे लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और ये आपने डाला। इसमें आप अगर मीठा करना चाहें तो आप मिश्री डाल सकते हैं। ठीक है। ये आपका कहवा तैयार हो गया। नज़ला, जुकाम, खांसी या सीजनल एलर्जीज के लिए, जैसे हर 3 महीने बाद
डस्ट एलर्जी हो या किसी वजह से आपको स्नीजिंग होती है, नाक में एकदम खुजली होती है, आंखों में पानी भर आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक कहवा हो गया, इसको हम हटा। ठीक है, आपने इसको सुबह शाम बनाकर पीना है। सही। अब दूसरी चीज, मिसकैरेजेस हो जाते हैं खवातीन के, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, रीजन पता नहीं चलता है इनके, 2 महीने 3 महीने बाद मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आजमाया हुआ हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है, वो गुलनार से यानी कि अनार के फूल से है, कि जिस तरह के अनार के फूल गिर जाते हैं ना, छोटे से बनते हैं, जैसे ये फूल खिला हुआ है जी, ये इस तरह बन के खुद ब खुद गिर जाते हैं। ठीक है, तो 7 फूल लेने हैं जो गिरे में हो, ऐसे जो गिरे हुए या अध खिला सा फ्लावर जो होता है, जिसे अनारकली कहते हैं। हाँ, अनारकली कहते हैं, और ये मार्केट में इस शक्ल में अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको मार्केट से इससे मिल जाता है। ठीक है, ये ताज़ा है, ताज़ा मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप ये वाला ले सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं उस किताब में तो ग्रामेज में या तोला में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसका जो निकाला है वो 7 अदद बनते हैं फ्लावर्स, 7 अदद अनारकली लेनी है। हाँ, अनार की कलियां लेनी है। ठीक है, और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। ठीक है, ये आपका एक डोज हो गया। आपने ये पीस कर सुबह खाली पेट खाना है। अच्छा, खाली पेट खाना है और मखसूस आयाम में नहीं खाना, 3 महीने इस्तेमाल करना है। आजमाया हुआ नुस्खा इसलिए कह रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को दिया जो औलाद के उससे महरूम सिर्फ इस वजह से थे कि मिसकैरेजेस हो जाते थे। सही। अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इस नुस्खे से उनकी कामयाबी हुई। चलें। मैं आपको बता दूं। चलें, इस रमजान मुबारक में अगर कोई ये नुस्खा सुन रहा है और उनकी दिली मुराद बराती है तो ये भी इससे एक अच्छी बहुत, कोई बात ये भी नहीं। एक बहुत बड़ा है? कार्य खैर है। अच्छा, अब तीसरी चीज, अनार से क्या कर सकते हैं, अगर ये अनार के जो छिलके हैं, इसका जो छिलका होता है, इसको ठीक है। आप पीस कर पाउडर बना के रख लें। अच्छा, छिलके को पहले सुखा लें। सुखा लें, बिल्कुल फिर उसको- सूखा हुआ पाउडर बना के रखें। ठीक है, इसका एक्सटर्नल यूज मैं बताती हूँ, अगर आपका कट्स लग जाए, ब्लीडिंग बहुत हो रही, यही अनार का छिलके का पाउडर आप अपने ब्लीडिंग पे डाल छिड़क दें। छिड़क दें। अच्छा, बिलीव करें उसी वक्त बंद हो जाता है, 2 मिनट लगते सही। हैं। वैसे तो सही तरीका ये है कि ब्लीडिंग हो रही तो आप इसको पकड़ के, टाइट पकड़ के रखें, फौरन डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन कट ऐसे लगे हुए होते हैं, हाँ, कि टाइम नहीं है इतना। टाइम नहीं है, तो आपके पास अगर ये है तो ये आपके इमरजेंसी की एक चीज है कि आप इसको डाल सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा जो नुस्खा है वो ये है कि बच्चों को लूज मोशन बहुत होते हैं या पेट में कीड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी छिलके से आपने क्या करना है, चावल उबाले, छिलका कड़वा होता है इसलिए चावल आपने उबाले, उसमें आपने 1/4 टीस्पून ये डाला, 2 चम्मच चावल काफी होते हैं उबालने के लिए। ठीक है। गुड़ बेटा दे दो मुझे। तो अगर जैसे बुजुर्ग हैं या घर में बच्चों के अलावा बड़े हैं, वो भी उनको कर सकते हैं। फिर वो अगर उनको शुगर है तो फिर आप जो है ना चावल गुड़ का ना उबालें। इस्तेमाल ना करें। ठीक, फिर ऐसे ही इसका कावा बना के पिए। हाँ, इसका कहवा बना के पीना भी बहुत अच्छा है पेट के अमराज में। अच्छा। पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। जिनको लूज मोशन होते हैं या तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन बच्चों को अगर आप देते हैं, छोटे बच्चों को, तो आप इस तरह देंगे, थोड़े चंद पत्ते पुदीने के डाले, अनार का छिलके का पाउडर डाला, ठीक है। और चावल और थोड़ा सा गुड़ आपने डाला इसमें, ठीक है, और आपने ये बना लिया। सही, सही है। ठीक। और इसमें अगर आप चाहें तो देसी घी 1 चम्मच डाल सकते हैं, और आप ये वाला चावल बच्चों को दें। ठीक। सॉरी, ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद करके बात कीजिएगा ताकि आपकी बात जो है वो सुनी जा सके। जी मैडम। जनाब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है बच्ची, ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपके पूछने का। आपका रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ फरमाइएगा। जी, आप भी हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से कॉल कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस गुजारिश ये है कि सुबह के प्रोग्राम में अगर कोई नाता आप शामिल कर दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। कौन सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना चाह रहे हैं आप? ए रसूल अमी। तो मुकरम भाई, ए रसूल अमी वो सुनना चाह रहे हैं हमसे, तो हम ये नात रसूल मकबूल जरूर आपको सुनवाएंगे जी। अभी जैसे में सेगमेंट खत्म करेंगे तो हम आपको यही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का और शाम में हमारे साथ सहरी में शामिल होने का जी। अच्छा, तीसरी चीज, बुजुर्ग हजरात या खवातीन जो डाई करना चाहते हैं, वो डाई एलर्जी है, वो हाँ। डाई नहीं कर सकते, अपने बाल रंग नहीं सकते, तो नेचुरल डाई बता रही ठीक हूँ, है। आप ये घर में बनाएं, लेकिन एक पैच टेस्ट कर लें।
اس کو آپ لگاتے رہے مسلسل تو پھر آپ کو کسی